کیا آپ جانتے ہیں کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی ذاتی زندگی اصل میں کیسی تھی؟ انہوں نے لاہور کے کس حلقے سے کن حالات میں الیکشن لڑا اور پہلی بار MLA منتخب ہوئے؟ جب ایک مولانا نے علامہ اقبال کو داڑھی رکھنے کی تاکید کی تو علامہ نے انہیں کیا جواب دیا؟ علامہ اقبال کے بیٹے نے ان کے خلاف کتاب کیوں لکھوائی؟ علامہ محمد اقبال لاہور کی بادشاہی مسجد کے پہلو میں مدفون ہے تو ترکی میں ان کی قبر کیوں بنائی گئی ہے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کی زندگی سے متعلق 30 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں اتھروبا رضا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ نمبر 1، علامہ محمد اقبال کے والد بزرگوار کا اسم گرامی شیخ نور محمد جبکہ والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ نمبر 2، علامہ اقبال کے بڑے بھائی کا نام شیخ عطا محمد تھا۔ 2 بہنیں علامہ اقبال سے بڑی تھیں جن کے نام طالع بی بی اور فاطمہ بی بی تھے، جبکہ 2 بہنیں علامہ اقبال سے چھوٹی تھیں اور ان کے نام کریم بی بی اور زینب بی بی تھے۔ نمبر 3، علامہ اقبال بچپن ہی سے حاضر جواب تھے۔ ابھی ان کی عمر صرف 11 سال تھی کہ جب وہ ایک روز تاخیر سے اسکول پہنچے۔ ماسٹر صاحب نے پوچھا، اقبال تم دیر سے آئے ہو؟ تو علامہ اقبال نے بے ساختہ جواب دیا، جی ہاں، اقبال ہمیشہ دیر سے ہی آتا ہے۔ نمبر 4، مئی 1893 میں 16 برس کی عمر میں علامہ اقبال نے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ فرسٹ ڈویژن آئی اور میڈل کے ساتھ وظیفہ بھی ملا۔ اسی روز علامہ اقبال کی پہلی شادی کریم بی بی سے کر دی گئی۔ علامہ اقبال کی دوسری شادی 1914 میں سردار بیگم سے ہوئی، جبکہ ان کی تیسری اہلیہ کا نام مختار بیگم تھا، جو لدھیانے والی بیگم صاحبہ کہلاتی تھیں۔ نمبر 5، علامہ اقبال کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی پیدا ہوئے جن کے نام آفتاب اقبال اور معراج بی بی تھے۔ علامہ اقبال اپنے بڑے بیٹے آفتاب اقبال سے نالاں تھے اور آفتاب نے بھی علامہ کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ علامہ اقبال نے اپنی جائیداد اپنی دوسری بیوی سردار بیگم کے نام کروا دی تھی۔ سردار بیگم نے اپنی وفات سے قبل اپنی تمام پراپرٹی اپنے بیٹے جاوید اقبال کے نام کروا دی۔ نمبر 6، علامہ اقبال کا پہلا بیٹا آفتاب اقبال، جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے علامہ اقبال کے دل سے اتر گیا تھا۔ ایسا بھی بتایا جاتا ہے کہ آفتاب اقبال نے نام بدل کر اقبال اور ان کی پہلی بیوی کے نام سے کتاب بھی تحریر کی، جس میں اس نے اپنے والد کی نجی زندگی کو ڈسکس کرتے ہوئے ان پر انتہائی غلیظ قسم کے الزامات لگائے تھے۔ نمبر 7، علامہ اقبال کی دوسری اہلیہ سردار بیگم کے بطن سے جاوید اقبال اور منیرہ بانو پیدا ہوئے۔ نمبر 8، علامہ اقبال کی اہلیہ سردار بیگم کے انتقال کے بعد بچوں کی پرورش کے لیے جرمن نژاد گورننس کو ملازمت پر رکھا گیا، جس کا نام آنٹی ڈورس تھا۔ علامہ اقبال کی وفات کے وقت منیرہ 8-9 برس کی تھیں۔ بچوں کی پرورش، دیکھ بھال اور گھر کے دیگر کام کاج آنٹی ڈورس کے سپرد تھے۔ نمبر 9، علامہ اقبال نے 1905 میں ترانہ ہندی تحریر کیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے، یہ گلستاں ہمارا۔ ترانہ ہندی کو انڈیا میں قومی گیت کا درجہ حاصل ہے اور اسے آج بھی اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ نمبر 10، انڈیا کے پہلے خلا باز راکیش شرما اسپیس سے ہو کر واپس پہنچے۔ جب ان سے پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے پوچھا، انترکش سے بھارت کیسا دکھتا ہے، تو راکیش شرما بولے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ نمبر 11، علامہ اقبال نے 1910 سے اپنی ذاتی ڈائری لکھنا شروع کی تھی، جسے ان کے بیٹے جاوید اقبال نے 1961 میں پبلش کروایا۔ نمبر 12، علامہ صاحب آم، انگور اور خربوزے بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ اکبر الہ آبادی انہیں آم کے تحفے بھجواتے۔ علامہ اقبال کو معالج نے گلے کی تکلیف کے لیے سردا تجویز کیا تو حکومت افغانستان کی طرف سے انہیں سردے بھیجے جاتے تھے۔ نمبر 13، اسپین سے مسلمانوں کو نکالے جانے کے بعد علامہ اقبال وہ پہلے مسلمان تھے کہ جنہوں نے قرطبہ کی جامع مسجد میں نماز ادا کی تھی۔
नंबर 14, साल 1922 में किंग जॉर्ज ने अलामा मोहम्मद इकबाल को सर के खिताब से नवाजा। याद रहे कि सर का टाइटल खान बहादुर से बड़ा खिताब था। नंबर 15, अलामा मोहम्मद इकबाल 1926 में होने वाले इंतखाबात में पंजाब की कानून साज असम्बली के रुकन बने। उन्होंने इस इलेक्शन में अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को 3177 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी थी। अलामा इकबाल ने लाहौर के उसी हलके से इलेक्शन लड़ा था जहां अब उनका घर है। उस वक्त ये हलका गढ़ी शाहू और मुगलपुरा के इलाकों पर मुश्तमिल था। नंबर 16, डॉक्टर जावेद इकबाल के मुताबिक 1926 की पंजाब कौंसिल के इंतखाब में कामयाबी के बाद अल्लामा इकबाल ने सर फजल हुसैन की कायम करदा यूनियनिस्ट पार्टी की रुकनियत इख्तियार कर ली थी। नंबर 17, अल्लामा इकबाल के सबसे करीब समझे जाने वाले खादिम का नाम अली बख्श था। अल्लामा के दोस्त अहबाब जब मुलाकात के लिए आया करते तो उनकी तवाज़ो करना अली बख्श की ड्यूटी थी, जबकि अल्लामा इकबाल के हुक्का सुलगाने की जिम्मेदारी भी यही अली बख्श अदा करते थे। नंबर 18, यहाँ मैं अल्लामा इकबाल का एक मज़ाहिया वाक़या आपको सुनाती चलूँ कि उनके एक दोस्त को कुत्ते पालने का बेहद शौक था। एक रोज़ वो अपने पालतू कुत्तों के हमरा अल्लामा से मिलने चले आए। वो साहब अल्लामा इकबाल से मिलने सहन में आए जबकि कुत्ते मोटर कार ही में रहे। इतने में अल्लामा की छोटी साहबजादी मुनीरा भागती हुई आई और वालिद से कहने लगी, अब्बा अब्बा मोटर में कुत्ते आए हैं। अल्लामा इकबाल ने दोस्त की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, ये तो आदमी हैं। नंबर 19, अल्लामा इकबाल मौलाना रूमी को अपना रूहानी उस्ताद मानते थे और उन्हें पीर रूमी के नाम से याद करते। याद रहे कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार तुर्की के शहर कोनिया में है। कोनिया में एक पार्क का नाम इकबाल पार्क है और कोनिया में एक मस्जिद भी इकबाल के नाम से मंसूब है। तुर्कों ने अल्लामा इकबाल की अकीदत और पाकिस्तान की मोहब्बत के इजहार में लाहौर से अल्लामा के मज़ार की मट्टी लाकर कोनिया में मौलाना रूमी के मज़ार के दाएं तरफ अहाते में दफन करके अल्लामा की अलामती कब्र बनाई है। संगे मरमर से मुज़य्यन इस कब्र पर तुर्क ज़ुबान में अल्लामा इकबाल का नाम, तारीख़ पैदाइश और इंतकाल की तारीख कुंदा है। नंबर 20, जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग की एक गली अल्लामा इकबाल के नाम से मंसूब है। नंबर 21, वैसे तो अल्लामा इकबाल पर हज़ारों की तादाद में किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन उनकी स्वाने हयात पर लिखी जाने वाली मुस्तनिद किताब का नाम जिंदा रूद है। ये किताब उनके साहबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल मरहूम ने लिखी थी। नंबर 22, जब 1925 में लाहौर हाई कोर्ट में एक खाली असामी के लिए अल्लामा इकबाल ने जज के ओहदे के लिए दरख्वास्त दी तो उस वक्त के चीफ जस्टिस सर शादी लाल ने अल्लामा इकबाल की शदीद मुखालिफत की। उनका कहना था कि हम तो इकबाल को शायर की हैसियत से जानते हैं, कानूनदान की हैसियत से नहीं। नंबर 23, एक ज़माने में अल्लामा इकबाल को सितार बजाने का बहुत शौक था। वो एक रोज़ हस्बे मामूल सितार बजा रहे थे कि उनके दोस्त सर जुल्फ़िकार अली और सरदार जोगेंद्र सिंह मिलने आए। अल्लामा इकबाल को सितार बजाता देखकर सरदार जोगेंद्र सिंह बोले, क्या हर वक्त सितार को गोद में लिए बैठे रहते हो? अल्लामा इकबाल मुस्कुराते हुए बोले, क्या करूं, सीखनी जो हुई। ये जवाब सुनकर सब लोग हंसने लगे। नंबर 24, अल्लामा इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में 50 के करीब किताबें लिखी। उनकी पहली किताब असरार खुदी है जो कि 1915 में लिखी गई थी। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी और इंग्लिश ज़बान में भी कई किताबें लिखी। उनकी उर्दू शायरी की मशहूर किताबों में बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम शामिल हैं। नंबर 25, जनवरी 1919 में अल्लामा इकबाल मैसूर तशरीफ़ ले गए। टीपू सुल्तान शहीद के मज़ार पर 2 घंटे मराकबा करने के बाद बाहर निकले। शिद्दत गिरिया से आंखें सुर्ख हो रही थीं और सूज गई थीं। किसी ने आपसे पूछा कि आपने टीपू सुल्तान के मज़ार में इतनी देर मराकबा फरमाया है, हमें भी बताएं कि आपको वहाँ से क्या फैज़ हासिल हुआ और क्या पैगाम मिला। अल्लामा साहब ने जवाब दिया कि वहाँ मेरा एक लम्हा भी बेकार नहीं गुजरा। एक पैगाम मिला है, अगर जहां में मर्दों की तरह जिंदा रहना मुमकिन ना हो तो मर्दाना वार जान कुर्बान कर देने में ही जिंदगी है। नंबर 26, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वफ़ात पर अहरार के लीडर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था कि इकबाल को ना ही कौम समझ सकी और ना ही अंग्रेज़। अगर कौम इकबाल को समझ जाती तो आज गुलाम ना होती।
और अगर अंग्रेज इकबाल को समझ लेता तो इकबाल बिस्तरे मर्ग पर न मरता बल्कि तख्तादार पर लटकाया जाता। नंबर 27, अल्लामा इकबाल के बेटे जावेद इकबाल की शादी नासिरा इकबाल से हुई। नासिरा इकबाल लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस रह चुकी हैं और वो इल्म दोस्त शख्सियत हैं। अल्लामा इकबाल के साहबजादे जावेद इकबाल ने भी अपने वालिद की तरह इलेक्शन लड़ा। 1970 के जनरल इलेक्शन में जावेद इकबाल लाहौर के एक हलके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग कौंसिल के उम्मीदवार थे, जहां उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। भुट्टो के 78,000 के करीब वोटों के मुकाबले में जावेद इकबाल के बैलेट बॉक्स में तकरीबन 34,000 वोट ही आ सके और वो इलेक्शन में शिकस्त खा गए। जावेद इकबाल न सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, बल्कि वो जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस भी रहे। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कई किताबों के मुसन्निफ थे, जिनमें से मशहूर अपना गिरबान चाक है और जहाने जावेद हैं। वो 3 अक्टूबर 2015 के रोज़ 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। अल्लामा इकबाल की सबसे छोटी बेटी मुनीरा बानो लाहौर के साबिक लॉर्ड मेयर मियां अमीरुद्दीन की बहू बनी। अल्लामा इकबाल के दामाद मियां सलाहुद्दीन भी सियासतदान थे। 1970 के आम इंतखाबात में मियां सलाहुद्दीन लाहौर के हलके से मुस्लिम लीग कन्वेंशनल के उम्मीदवार थे, जहां उन्हें शिकस्त से दो चार होना पड़ा। जावेद इकबाल के बेटे और अल्लामा इकबाल के पोते वलीद इकबाल भी सियासत करते हैं। वलीद इकबाल एक काबिल वकील और लम्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 2013 में पीटीआई के टिकट पर लाहौर में इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन वो हार गए। वलीद इकबाल इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेटर और सेनेट में डिफेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। मुनीरा इकबाल के बेटे और अल्लामा इकबाल के नवासे मियां यूसुफ सलाहुद्दीन वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ाती दोस्त हैं। मियां सली के नाम से पहचाने जाने वाले मियां यूसुफ सलाहुद्दीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर के MPA भी रह चुके हैं। मियां यूसुफ सलाहुद्दीन लाहौर के कल्चर की अलामत समझे जाते हैं। अंदरून लाहौर में वाक़या उनकी बारूद खाना हवेली में मौसीकी का एक प्रोग्राम भी रिकॉर्ड होता है, जो सरकारी TV पर नशर होता है। अल्लामा इकबाल के सबसे बड़े बेटे आफताब इकबाल ने आलिया रशीद बेगम से शादी की और उनके 3 बेटे पैदा हुए, जिनके नाम आज़ाद इकबाल, वकार इकबाल और नवीद इकबाल हैं। नंबर 28, एक दफ़ा तुलबा का एक ग्रुप अल्लामा इकबाल से मिलने आया। उन्होंने अजीब सा सवाल कर दिया कि आपको नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिला। अल्लामा इकबाल मुस्कुराते हुए बोले, अगर मुझे नोबेल प्राइज़ मिल चुका होता तो फिर मुझसे ये सवाल किया जाता कि मैंने कौन से कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं जो मुझे नोबेल इनाम दिया गया। अल्लामा इकबाल के इस जवाब के बाद तुलबा के लिए इस मौजू पर बहस करने की गुंजाइश न रही। नंबर 29, एक रोज़ मौलाना साहब अपने मुकदमे की कानूनी मुशावरत के लिए अल्लामा इकबाल के पास आए। वो अपनी बहन को जायदाद से महरूम करना चाहते थे। अल्लामा इकबाल को उनके मुकदमे में ज़र्रा बराबर भी दिलचस्पी ना थी। वो हमेशा अल्लामा इकबाल से कहते कि जनाब, आप तो शरीयत के हामी हैं, लेकिन आप दाढ़ी नहीं रखते, जो इस्लामी शार की खिलाफ वर्जी है। अल्लामा इकबाल उन मौलाना साहब की रोज़ रोज़ की नसीहतों से तंग आकर बोले, लाइए अपना हाथ दीजिए, मैं आपसे दाढ़ी रखने का वादा करता हूँ, लेकिन आप भी मुझसे वादा करें कि आप अपनी बहन को विरासत में हिस्सा देंगे। ये सुनकर ना तो मौलाना का हाथ आगे बढ़ा और ना ही अल्लामा इकबाल की दाढ़ी बढ़ी। नंबर 30, अल्लामा इकबाल एक बार अपने किसी दोस्त के हमराह सियालकोट से रेलगाड़ी में लाहौर जा रहे थे। रेल के डब्बे में एक बुजुर्ग बैठे थे। जब उन्हें पता चला कि शायर मशरिक उनके हमसफ़र हैं तो वो बहुत खुश हुए। अल्लामा साहब उनसे बड़ी खुशदिली से मिले और उन्हें अपनी सिगरेट की डब्बी खोलकर एक सिगरेट पेश की। उस बुजुर्ग ने अल्लामा इकबाल के हाथ से वो सिगरेट ले ली, मगर सिगरेट को जलाने की बजाय जेब में रख लिया। अल्लामा इकबाल को हैरत हुई। उन्होंने पूछा कि आपने सिगरेट सुलगाई नहीं? वो साहब बोले कि ये मुतबर्रिक सिगरेट मेरे ख़ानदान में यादगार के तौर पर महफूज रहेगी। अल्लामा इकबाल इस पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने दूसरी सिगरेट देते हुए फरमाया, अच्छा तो इससे शौक फरमाइए। हम सफ़र बुजुर्ग ने दूसरी सिगरेट भी सुलगाए बगैर जेब में रख लिया। अल्लामा इकबाल मुस्कुराए और चुप हो गए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल वाजिद अली बरकी की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे, और कत्ल हो जाने वाले वज़ीर आला पंजाब ग़ुलाम हैदर वाई की बायोग्राफी के लिए इधर क्लिक करें।
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ ناصر۔